So now today we are coming to the main topic. What is intermittent fasting? So intermittent fasting is an eating pattern that cycles between periods of fasting and eating. It doesn't specify which foods you should eat, but rather when you should eat them. In this respect, it's not a diet in the conventional sense, but more accurately described as an eating pattern. Common intermittent fasting methods involve daily 16-hour fast or fasting for 24 hours, twice per week. Okay, तो simple है very, बहुत ज़्यादा कि आपको क्या करना है कि इसमें 16 घंटे का फास्ट करना है या 24 hours का फास्टिंग करना है हफ्ते में 2 बार बस. Fasting has been a practice throughout human evolution, as we all know, especially in Indian culture. Ancient hunter-gatherers didn't have supermarkets, refrigerators, or food available year-round. Sometimes they couldn't find anything to eat. So this came into their mind like we need to do the fasting because they are not having any food to eat. So as a result, humans evolved to be able to function without food for extended period of time. In fact, fasting from time to time is more natural than always eating 3 to 4 or more meals per day. Right? So what are the methods for intermittent fasting? There are several different ways of doing intermittent fasting, all of which involve splitting the day or week into eating and fasting period. So we can plan according to the requirement of the client, like what is the eating period and what is the fasting period. During the fasting periods, you eat either very little or nothing at all. These are the most popular method. The 16/8 method, what you will do in that? You also call the lean gain protocols. It involves skipping breakfast and restricting your daily eating period to 8 hours, such as 1 to 9 p.m. That's it. Then you fast for 16 hours. Okay, like automatically it is happening nowadays for the people. Those working from home or whatever, they start working around 10 o'clock or whatever, they get up at 9 o'clock and they start doing their work and then they eat 12 or 1 o'clock, directly the brunch, right? So eat, stop, eat. This involves second method, fasting for 24 hours, once or twice week. And for example, by not eating from dinner, one day until dinner of the next. So, क्या करना है इसमें आपको कि आज आपने डिनर खाया फिर आपने फास्टिंग शुरू कर दी, पूरे दिन आपने व्रत किया और रात में डिनर कर दिया. So you can do like this. Rather, I can suggest one more thing, like आपने ब्रेकफास्ट अच्छा बढ़िया हैवी कर लिया, पूरे दिन नहीं खाया और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट कर दिया. I will prefer this one instead of eating dinner to dinner, because रात को खाने से अच्छा है तो वो और अच्छा हमारा इफेक्टिव रहेगा. करेक्ट? एग्री ना? फास्टर? ओके. ये मैम 16/8 वाला तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ रोजा ही हो गया ये तो. हाँ, और क्या, रोजा वाले लोग यही कर रहे हैं. एग्जैक्टली, वाटर भी नहीं आएगा. हाँ, पानी भी नहीं आता. बिल्कुल. And third one is the 5:2 diet. With this diet, you consume only 500 to 600 calories on 2 consecutive days of the week, but eat normally the other 5 days. इसमें आप क्या कर रहे हो कि 5 दिन आप खाना खा रहे हो और 2 दिन आप बस बहुत कम 500-600 कैलोरी खा रहे हो. तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होती है. जो लोग कर पाएंगे वही कर पाएंगे, क्योंकि 500-600 कैलोरी में तो कुछ भी नहीं आएगा. आपका अगर सिर्फ एक लंच कर लेते हो और एक बार चाय बिस्किट खा लेते तो ही 500 कैलोरी हो जाती है ना. ठीक है, तो वो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. तो दिस इज मोर और लेस लाइक ईट स्टॉप ईट टाइप वाला ही हो गया कि उसमें चाय बिस्किट एक्स्ट्रा खा लिया, या फिर आप फिर वही फ्रूट्स की तरह फूड प्लान पर चल रहे हो केवल, तभी हो पाएगा ये. 1-2 बार दूध पी लिया, चाय पी ली, फ्रूट ले लिया, जो नॉर्मली इंडियंस करते हैं फास्टिंग में. जो लोग कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूध और फूड पर रहते हैं ना, उनका होता है ये 500-600 कैलोरी वाला फास्ट. करेक्ट? ओके. So by reducing your calorie intake, all of these methods should cause weight loss as long as you don't compensate by eating much more during the eating periods. Many people find the 16/8 method to be the simplest. Exactly. कि आप पूरे दिन आराम से रह रहे हो और अपना थोड़ा लेट खाना शुरू कर रहे हो और रात को 8-9 बजे तक खाना खा रहे हो तो भूख लगनी नहीं है, सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट ही मिस करना है. So you can do very easily, right? More sustainable also and easiest to stick to. So it's also the most popular one. Right? So what are the health benefits of intermittent fasting? Number one is the weight loss. As mentioned above, we have discussed about this point, like belly fat वगैरह किसी का ज्यादा है
तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ले जा सकते हैं उसको। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको डेवलप हो रही है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है। इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका एलडीएल जो है वो कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स और आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ब्लड शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सभी को कम करने में हेल्प करेगा। कैंसर डिसीज में हेल्प करेगा, ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी is also there with the intermittent fasting, right? So 9 potential intermittent fasting side effects क्या है? अभी तक हम अच्छा सा हमने सुन लिया, अब साइड इफेक्ट क्या है वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये वाले साइड इफेक्ट बाद में होंगे और जब वो वापस क्रेविंग हंगर होगी तो अगर हम सही तरीके से नहीं समझाएंगे तो हम खुद या हमारा क्लाइंट फिर टूट पड़ेगा खाने के ऊपर, राइट? सो हंगर एंड क्रेविंग्स डेवलप हो जाती है अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरह से कर रहे हो. सो इट मे बी नो सरप्राइज दैट हंगर. ओके. सेकंड इज द हेडेक्स एंड लाइट हेडेडनेस. चक्कर भी आ सकते हैं आपको, है ना, सिर भारी भारी भी हो सकता है आपका, इस तरह की कुछ कुछ चीजें हो जाएंगी. डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, सॉरी, ओके. कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि आप काफी टाइम तक एम्प्टी स्टमक रहते हो और आपकी बॉडी में कफ पित्त वात का क्या कॉम्बिनेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी इस फास्टिंग को. ओके. रिडक्शन ऑफ फूड इंटेक दैट कम्स अलोंग विद द सम इंटरमिटेंट फास्टिंग regimes may negatively impact your digestion through all these type of things. Okay, so we need to keep a check on all these things as well. तो ऐसा ही नहीं है कि बस फास्टिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दिया या करवाना शुरू कर दिया, उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इरिटेबिलिटी एंड अदर मूड चेंजेस, दिस मे आल्सो हैपन, राइट? कि आप इरिटेटेड फील कर सकते हो क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया जब आपको होगा तो आपको ऐसा ही लगने वाला है ना. कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे तो एंजाइटी भी बढ़ सकती है, कंसंट्रेशन आपकी लो हो सकती है, फटीग एंड लो एनर्जी भी फील कर सकते हैं. देखा है ना, कई बार हम लोग को आदत नहीं है क्योंकि फास्ट करने की, तो जो हम फास्टिंग करते हैं तो अगले दिन हो कल तो हमारा व्रत था भाई, और सुबह उठ के पराठा खा लेते हैं. ये बहुत बहुत ज्यादा लोग करते हैं. तो ये सब चीजें होती है. बेड ब्रेथ, बिकॉज आप फाइबर कम खा रहे हो, आप च्यू कम कर रहे हो, सलाइवा आपका कम बनेगा, और सलाइवा जब आपका कम बनेगा तो एसीटोन आपकी ब्रेथ में बढ़ जाएगा, एसीटोन बढ़ जाएगा तो आपकी ब्रेथ में इफेक्ट. सो फास्टिंग कॉजेज द बॉडी टू यूज फैट फॉर फ्यूल, राइट? तो जो एसीटोन जब बढ़ जाएगा तो क्योंकि बिकॉज वो फैट मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है, सो इट मे इंक्रीज योर इन योर ब्लड एंड ब्रेथ ड्यूरिंग द फास्टिंग. स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डेफिनेटली, कि जब आपका खाने का मन कर रहा होगा और आप फास्टिंग की हुई होगी तो आपको भूख लग रही होगी तो आपको नींद नहीं आएगी, सो यू आर अनेबल टू फॉल स्लीप, राइट? सो इनिशियल डेज में फास्टिंग की वजह से आपको फटीग भी हो सकती है. और लार्ज अमाउंट क्यों होगी फटीग? क्योंकि हमारी बॉडी से लार्ज अमाउंट में सॉल्ट एक्सक्रीट हो जाएंगे, और हम वाटर हम अगर ज्यादा अच्छे से नहीं पी रहे हैं या हम फ्रूट्स बहुत अच्छे से नहीं खा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. इसीलिए कहा जाता है कि उन दिनों में फ्रूट्स बहुत अच्छे से लें, और अगर कोई लगातार कर रहा है तो कोकोनट वाटर या लाइम वाटर या बटर मिल्क इस तरह की चीजें जरूर लें, उनको हम जरूर बताएं. मेल न्यूट्रिशन में डेवलप, अगर हमने ठीक तरीके से प्लान नहीं किया है डाइट को तो इट मे डेवलप द मेल न्यूट्रिशन, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से मील प्लान नहीं कर रहे हैं, और या प्रॉपर तरीके से वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे होते तो मेल न्यूट्रिशन हो सकता है. एंड डिहाइड्रेशन, अभी हमने बात किया कि डिहाइड्रेशन में डेवलप बिकॉज यूरिनेशन तो होता ही रहेगा, धीरे धीरे आपका जितना यूरिनेशन पहले होता था उससे कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में आप पानी कम पियोगे. नेचुरल सी बात है कि फास्टिंग है तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिन में पानी ही पानी पीते रहे, है ना. तो if this happens to you, then you don't replace the fluids and electrolytes you lost through urine, so you could become dehydrated. So additionally, people practice intermittent fasting may forget to drink. जैसे मैं भी बोल रही थी ना कि बार बार पानी नहीं पिएंगे, वो भी भूल जाते हैं, है ना. तो who should avoid intermittent fasting? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever you say to anyone, like people who are pregnant, breastfeeding, okay, never ever give them fasting. यंग चिल्ड्रन एंड टीन्स को नहीं बताना, ओल्डर एडल्ट्स को जिनको वीकनेस हो उनको नहीं बतानी है फास्टिंग ज्यादा, ठीक है. इम्यून डेफिशिएंसी जिनको, उनको नहीं बताना है, उनका पीछे कोई या इस समय कोई ईटिंग डिसऑर्डर है ना, उनको भी नहीं बताना है. ओके छवि, डिमेंशिया है तो भी नहीं देना है, ठीक है. रिस्क क्या है? ऑल्दो इट इज
Although it's generally safe, going to a day without eating can be risky for some people, including with diabetes. Like जो diabetes वाले हैं उनको हम नहीं बोलेंगे क्या fasting पे चले जाओ, या जिसकी हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर्स अभी हमने बात किया, या कोई मेडिकेशन पर है ना, जिनको खाने के साथ वो मेडिसिन खानी है, लेकिन वो क्या करेगा कि मेडिसिन फास्टिंग तो रख लेगा लेकिन मेडिसिन अपनी कंटिन्यू करे, तो हो सकता है उसका वो कुछ अप डाउन हो जाए. ओके. और चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, उनको कभी भी फास्टिंग के लिए सजेस्ट नहीं करना है. राइट. वाटर इंटेक के बारे में भी हम बात ही कर रहे थे कि वाटर इंटेक फास्टिंग में जरूर रखनी है, अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा. ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज वेरी मच एसेंशियल, क्योंकि अगर आप कम से कम 8 आउंस 2 लीटर पानी पीना ही पीना है हमें 24 घंटे में, जब तक कि अगर आपका अनलेस रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस फॉरबिड्स इट, लाइक जैसे रोजे में होता है या किसी हमारे फास्ट में निर्जल रहना होता है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज हमें कम से कम 2 लीटर पानी रेस्ट ऑफ द आवर्स में हमें उसे कंप्लीट करना है. ब्लैक कॉफी, 0 कैलोरी ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स जो है ये सब भी हम थोड़ा बहुत पी सकते हैं चाय वगैरह उस टाइम. राइट. What happens during fasting? Whatever a person is fasting or not, the body still needs energy. Its primary energy source is a sugar called glucose. So which usually comes from carbohydrates, including grains, dairy products, fruits, and certain vegetables, beans, and even sweets. Okay. So liver and muscles store the glucose and release it into the bloodstream. That you all know. So लेकिन fasting में क्या होता है? Process उल्टा हो जाता है. After about 8 hours of fasting, the liver will use the last of its glucose reserve. So at this point, the body enters into a state of called the gluconeogenesis. So marking the body transition into fasting. Okay, तो टोटल उल्टा हो जाता है हमारी बॉडी में. हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि ग्लाइकोजन यूटिलाइज होने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. कैन फास्टिंग प्रमोट वेट लॉस? हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि लाइक इट डज अपीयर दैट फास्टिंग कैन हेल्प विद वेट लॉस. Trusted sources have said this, but however, studies make it clear that this is not the case for everyone. As we have discussed earlier also, popular diet plans include 12-hour or 16-hour fasting periods, as well as the other fast. Some diets require people to drink only water during the fast, while others allowed as 0-calorie beverages. So fasting is not necessarily better than any other weight loss method, including reducing daily calorie intake by a small amount. तो व्हाट वी शुड डू कि थोड़ा थोड़ा हमें कम करना है, एकदम से हमें उनको लो पर नहीं ले जाना, जिससे उनकी बॉडी भी यूज टू होने लग जाए एंड दे कैन accommodate very easily. People with obesity who fasted intermittently for 12 months lost slightly more weight than those who dieted in a more traditional way. But the results were not statistically significant, but we can try. Or always keep in mind, always take care of the precautions and or the nutrient deficit should consider during the process. What happens to your body when you fast for 24 hours? We should know. क्या होता है हमारी बॉडी के साथ कि जब हम कंटिन्यूअसली हम फास्ट करते हैं तो फूड ले रहे हैं, हम ड्रिंक ले रहे हैं. ओके. तो क्या हो क्या रहा है कि 24 आवर्स तक हम नहीं खा रहे हैं. राइट. जब आप 24 आवर्स तक हम नहीं खा रहे हैं तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. While you find dozens of fasting plans believed to have positive effect on weight loss, the truth is that there is a little evidence to prove that. But some dietitian is saying like fasting or eating on food can result in weight loss, but the effect may be temporary. In other words, you may gain all the weight back within a day or two of eating normal foods. Hence, you should eat a balanced diet and do exercises if your goal is weight loss. And don't rely on fat diets to shed the extra kilos. As I am saying from the very starting, whenever you try to fast for the weight loss plan, you should consider your nutrient balanced diet. Plus, don't make the person so deficit of food, like whenever he break the fast, he just crave or hunger craving may develop, or he may go for the high calorie or calorie dense food. राइट. अगर आप अच्छे से उसको खाना प्लान नहीं करके दोगे तो पक्का वो फिर अगले दिन पूरी कचौड़ी पे टूटने वाले, पराठा ही खाए. तो हमें प्लान इस तरह से करना है कि उसको क्रेविंग ना. ये हम बात कर चुके हैं. लाइक सीवियर हेडेक हो जाएगा, हो सकता है डिहाइड्रेशन हो सकता है. नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ सोडियम. ये हमने जो भी बात करी थी कि फास्टिंग अगर हम कर रहे हैं और हम लोग
क्योंकि नमक नहीं खाते उस टाइम पे, तो सोडियम लेवल हमारा लो हो जाता है, हमारा पोटेशियम लेवल लो हमारे हो जाते हैं, मिनरल्स कंटेंट हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि हम उतना खाना नहीं खाते. तो फास्टिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज गुड फॉर हेल्थ, बट not when you are unable to meet the daily requirement of the body. We are saying again and again, we should consider the daily requirement. It can lead to electrolyte imbalance in the body. So I have shared earlier also a few things we should include in our diet. A lack of minerals and fluids in the body required to create electrolytes will cause sodium deficiency, which may lead to cramps. Okay, so sodium is an essential electrolyte that helps maintain the balance of water in and around the cells. So insufficient sodium in the body can lead to health complications, especially in the older people. Symptoms may include weakness, fatigue, headache, irritability, confusion, muscle cramps, vomiting, and nausea. So word of caution from our, we all dietitians like drink plenty of water, other fruit like buttermilk, tender coconut water, fruit juices, and lots of fruits, etc. to keep yourself hydrated. It will help keep the body hydrated and avoid problems like headache, dizziness, fatigue, muscle pain, joint ache, and other symptoms, depending on each individual. Okay. You should also eat a light breakfast that should include all the vegetables, fruits, and the products allowed in the fasting periods, right? So conclusion is this. It seems that there are many reasons to consider fasting as a benefit to one's health. The body rids itself of the toxins that have built up in our fat stores throughout the years. The body heals itself, repairs all the damaged organs during a fast. And finally, there is good evidence to show that regulated fasting contributes to longer life. However, many doctors warn against fasting for extended period of time without supervision. There are still many doctors today who deny all of these points and claim that fasting is detrimental to one's health and have evidence to back their statements. The idea of depriving a body of what society has come to view as so essential to our survival in order to heal continues to be a topic of controversy. As we have also discussed all these points, like if we are planning, we can plan, agreed, but not for the longer period. We can plan for 1 to 2 months maximum, like 4 to 8 weeks, or max to max 12 weeks. This is the first thing. Secondly, whenever we are planning, we should consider the body health condition of the client or ourselves. And if any deficiency is there, then we should compensate that first. And if we are having anything in excess, like proteins in excess, or calories in excess, okay, or fat reserves in excess, then we should work on that thing. But always balance minerals and vitamins. That is much more required with the proper hydration. In that way, we can do without the craving, right? The doctors do say कि हमें भूखा नहीं रहना ज्यादा देर तक, तो क्या हम लोग दे सकते हैं और सिर्फ प्री डायबिटिक को दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं? सी देखो अभी छवि बीच में तुम गायब हो गई थी, इसका मतलब अभी हमने डिस्कस किया वही ना कि अभी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि हमें स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को फास्टिंग के लिए अलाउ नहीं करना है. ओके, बिकॉज देखो शुगर लेवल अगर सडनली कम हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट चला गया ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. सो पेशेंट्स को तो देना ही नहीं है हमें उनको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, यंगर जनरेशन को नहीं कराना है फास्टिंग. ओके, बिकॉज वो मैनिपुलेट कर लेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे, और जब नेक्स्ट डे वो क्रेविंग की वजह से कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं तो फास्टिंग वेस्ट, अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए स्पेशली करा रहे. और डायबिटिक को तो बिल्कुल भी नहीं कराना. So it means pre-diabetic को we can give. Yes, pre-diabetic को we can go. And मैम अगर किसी को intermittent fasting दे रहे हैं तो इसके लिए क्या thumb rule यूज करना है कि we have to go 1000 kilocalories only, और जो भी उसका weight है उसके accordingly we have to go? Thumb rule is not there. Thumb rule is not there, but it all depends according to your what you want to give. That again it will depend ना कि उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है. सपोज आप किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरी है, आप उसको इमीडिएटली 1000 कैलोरी पर तो नहीं ला सकते हो, है ना. डेफिसिट आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. कि अगर कोई पहले ही ऑलरेडी 1500 कैलोरी खा रहा है और उसको सिर्फ आप 1000 कैलोरी पर लाओगे तो 500 कैलोरी डेफिसिट आपने किया, तो इट इज परफेक्ट. लेकिन अगर आप वो आपको देखना पड़ेगा कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंगली विल प्लान. बहुत से मैम ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वेट लॉस कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, राइट, लेकिन कुछ समय के बाद दे अगेन गेन वेट,
कुछ समय के क्या बात, वही जो हम बात कर रहे थे हफ्ता 10 दिन जैसे ही वो छोड़ते हैं, दे डू गेन वेट, या हम कहें कि हाइपरप्लाजिया का रीजन हो सकता है। तो उस चीज को हमें कैसे बैलेंस करना है? वही सब चीज, क्योंकि एक्चुअली हमें बहुत वाइजली पूरा डिस्कस करना है कि वो उनकी क्या फूड हैबिट चल रही थी, क्या उनकी क्रेविंग है, क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो क्या चीज बहुत खाना चाहते हैं, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो चीजें नहीं समझेंगे और अगर हम वो चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो पता क्या होगा, हमने अगर उनसे ये कह दिया कि नहीं आपको ये चीजें नहीं खानी, तो नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर पता चला हमने 10 चीजों की जो लिस्ट बना के दी है उसमें से 5 चीजें की उनको क्रेविंग होती है, बहुत पसंद है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो वो क्या करेगा कि जब जब मौका मिलेगा या तो हमें चीट करेगा, या उसे जब मौका मिलेगा आपको बता भी देगा और खाएगा भी, तो डेफिनेटली वो वापस आएगा, राइट। तो ये तो होता रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है कि आपको करानी है नहीं करानी है, और करानी है तो कैसे करानी है, और किसको क्या खाने को देना है, किसको क्या अवॉइड करवाना है, और क्रेविंग ना, यही हम बार बार बोल रहे हैं। बैलेंस खाना है, और ये फिर वो कर लेते हैं 2-2 महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल, अपने आप कर लिया, राइट। नहीं तो देखो, खाना तो खाना ही खाना है, और लेकिन साथ में वर्कआउट, हमने कहा वर्कआउट करना है, बट जब जिस दिन आप फास्टिंग करें उस दिन बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना है, लाइक लाइट वर्कआउट करना है, पर वर्कआउट छोड़ना नहीं। कि आज आपका फास्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वॉक पे नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप वॉक पे नहीं जाओगे तो इधर से आपने कैलोरी डेफिसिट तो कर लिया 200 400 500 कैलोरी, बट जो बर्नआउट कर रहे थे आप 200 400 कैलोरी, वो तो आपने नहीं किया, तो आप तो इक्वलेंट हो गए, तो फिर आपका फास्टिंग करने का यूज ही नहीं रहा कुछ भी, है ना। तो वो जो ऑलरेडी आपका जो सिस्टम चल रहा है वो तो चलाना ही चलाना है। फास्टिंग के थ्रू आपको कम से कम 500 कैलोरी डेफिसिट और लेकर आना है। क्या नितिका, यू आर वांट टू आस्क समथिंग? या लाइक क्रेविंग के लिए ही मैं आपसे बोल रही थी, वन ऑफ माई पेशेंट की वो कहती है, मैंने शी इज फ्रॉम टिपिकली पंजाबी फैमिली, लाइक नवरात्रों में मैंने अच्छा खासा वेट लूज कर लिया, 2 किलो लूज कर लिया, बट कहती नवरात्रे खोलने के बाद मैंने 8वें दिन इतना खा लिया, वो एक दिन में तो वही तो हम कंपनसेट। बार बार बात कर रहे हैं ना कि हमें समझाना है भाई, यही तो समझाना है, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि क्रेविंग तो आपके माइंड में है, क्रेविंग आपके मन में नहीं होती है, क्रेविंग आपकी जीभ पर नहीं आती, क्रेविंग आपके दिमाग में आती है कि मैंने 8 दिन के व्रत करे, अब तो भैया मेरे को ओपन हो गया, अब तो मैं पूरी सब्जी कचौड़ी सब खाऊंगी। वही हम शुरू से बार बार तो बता रही, पूरा सेशन तो इसी बात पर ले लिया कि क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह का प्लान करना है कि उसको क्रेविंग ना हो, और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे किसी को लेकर ही तब जाना है व्हेन द पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट कि वो जिसके बाद जिस दिन फास्टिंग है उसके अगले दिन कोई भी हाई कैलोरी डेंस फूड नहीं खाएगा। ये मैंने सबसे पहले शुरुआत में ये वाली बात बताई थी फर्स्ट यस यस, है ना। नितिका, यू वांट टू आल्सो से समथिंग? यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ये इंटर फास्टिंग क्या पीसीओडी, थायराइड और पीसीओएस पेशेंट्स को दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। उन लोगों के संग ऐसा कैलोरी का कोई चैलेंज नहीं होता है, दे सकते हैं। और जिनका इंसुलिन चल रहा है उनको तो हम इसको, डायबिटिक को तो नहीं देना है, इंसुलिन हो कोई भी हो, डायबिटिक को हमें नहीं देना है ना। ठीक है, डायबिटिक को नहीं देना है क्योंकि उनके जो अच्छा मैम, मेडिसिन चल रही है। फर्स्ट मैं ना लेट हो गई थी तो 2 से 3 स्लाइड मेरी छूट गई है, तो everyone to join with us and I think आप सब लोगों ने enjoy किया होगा session and it was really very interactive and informative session. You all can give the feedback, at least thumbs up वगैरह कुछ तो कर दो। कैमरा ऑन नहीं किया सब लोगों ने, कैमरा ऑन कर लो एक बार के लिए सारे, जरा मैं शक्लें देख लूं कौन कौन आया था। मुझे शक्लें चाहिए, सबकी शक्ल चाहिए। मैं अटेंडेंस तभी मांगती हूँ, सबको पता है मेरे चैप्टर में, सबको पता है, जो नए हैं वो लोग भी अब जान गए हैं। उपासना देखो पहले दिन से हमेशा कैमरा ऑन रखती है, हम लोग किसी की फोटो नहीं खींच रहे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा जस्ट फॉर अ मोमेंट सो दैट आई कैन रियली क्लिक अ पिक्चर एंड हम उसमें डाल देंगे अपने ग्रुप में। एवरीवन विल जेलस विद अस नाउ। Please send the PPT. कैन एवरीवन प्लीज? Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, please send. Ma'am,